I'm Afnan Tajuddin from MarketUpgrade.com, your trusted platform to learn about the market and advanced trading tools and indicators. Disclaimer: this video is for educational purpose only and is not a buying or trading recommendation. I am not a SEBI registered research analyst, and the content shared here is only for learning and understanding the market. Please do your own research or consult with a professional before making any trading decision. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप वरी ना करें. मैं इस इंग्लिश पार्ट के बाद हिंदी में भी बात करूंगा, सब आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा. So in today's video, we will analyze the Britannia chart. And through this analysis, I will show you the power of our demand and supply zones pro indicator. On my screen, you can see multiple windows on my chart, which is daily time frame, weekly time frame, and monthly time frame. Because I'm using the premium plan of TradingView, which allow me to open multiple windows in my layout. Let's dive into the analysis. Britannia is currently inside the weekly demand zone. It's also inside the monthly demand zone and also in daily demand zone. On weekly and monthly time frames, we can see there is no nearby supply zones. On daily time frame, there is a supply zone, but it has already been tested. This means Britannia is sitting in a very strong confluence area with demand zones across all three time frames. This significantly reduces the chance of these demand zones failing. Now let me show you something amazing about our indicator. Earlier, I used to analyze chart like this. I had to open three windows and look at three different charts to see demand and supply zones on weekly, daily, and monthly time frame. But now with our demand and supply zones pro indicator, you can plot multiple time frames zones on the same chart. For example, on daily chart, I can see the weekly demand zones by simply setting the indicator's higher time frame to weekly. If I also want to see the monthly demand zones, I just add the same indicator again and change the higher time frame to monthly. This means on a single chart, on a daily time frame, I can see the demand zones of daily, weekly, and monthly time frames. I no longer need multiple windows or a premium TradingView plan. This is the power of our demand and supply zones pro indicator. And I am confident that while there are many demand and supply zones indicator on TradingView, this multiple time frame feature is unique to our tool only. Let's plan a trade. Britannia is nested inside daily, weekly, and monthly demand zones. There is no higher time frame supply zones nearby, making this a strong buying opportunity. Again, I am telling you, this is just for educational purpose only. Okay, SL we can keep below demand zones approximately around 4.5%. And target aim for 19 to 20% around till opposite supply zones. So risk to reward will be around 1:4 or 1:4.5. You can also aim for 1:2 initially target, then trail your SL for bigger target. If you want to access this powerful indicator, visit marketupgrade.com and purchase it. Our pricing is highly affordable, just 399 rupees per month, less than $5 per month. So don't hesitate, start using it by today. Thank you for watching. Kindly share your feedback in the comment section and don't forget to like, share and subscribe for more updates. चलिए अब बात करते हैं हिंदी में. मैं हूं अफनान ताजुद्दीन marketupgrade.com से. और सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है. ये एक बाइंग या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है. मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं. और जो भी कंटेंट यहाँ शेयर किया जा रहा है वो सिर्फ मार्केट को समझने और सीखने के लिए है. कोई भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से पहले अपना रिसर्च करे या एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करे. आज के वीडियो में हम बात करते हैं ब्रिटानिया के चार्ट की. ब्रिटानिया के चार्ट को हम एनालाइज करेंगे और इस एनालिसिस के जरिए मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन्स प्रो इंडिकेटर की पावर दिखाने वाला हूं. मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं
3 टाइम फ्रेम्स, डेली, वीकली एंड मंथली। बिकॉज मैं ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान यूज कर रहा हूं, इस वजह से 3 विंडोज का लेआउट आप देख रहे हैं। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। ब्रिटानिया अभी वीकली डिमांड जोन के अंदर है, साथ ही ये मंथली एंड डेली डिमांड जोन के भी अंदर है। हायर टाइम फ्रेम यानी वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम्स पर कोई भी नियर बाय सप्लाई जोन नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन है, लेकिन वो ऑलरेडी टेस्टेड है। ये सब मिलाकर ब्रिटानिया अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस जोन में है, जहां डिमांड जोन्स तीनों टाइम फ्रेम के साथ मैच कर रहे हैं। प्राइस तीनों डिमांड जोन के अंदर है, इस वजह से ये डिमांड जोन्स के फेल होने के चांसेस काफी कम है। अब मैं आपको एक अमेजिंग फीचर दिखाना चाहता हूं अपने इंडिकेटर का। पहले मुझे तीनों टाइम फ्रेम के चार्ट्स अलग अलग देखने पड़ते थे, तीनों विंडोज खोलनी पड़ती थी और तीनों विंडोज के चार्ट एनालिसिस करने पड़ते थे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के जोन्स देखने के लिए। लेकिन अब डिमांड एंड सप्लाई जोन्स प्रो इंडिकेटर के साथ मैं एक ही चार्ट पर तीनों टाइम फ्रेम्स के जोन देख सकता हूं। चलिए बताता हूं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इस चार्ट में डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स है। इसकी वजह यह है कि हमारा इंडिकेटर मल्टीपल टाइम फ्रेम जोन्स प्लॉट करता है और बाय डिफॉल्ट हायर टाइम फ्रेम वीकली सेट की गई है। अगर मुझको डेली टाइम फ्रेम पर ही मंथली डिमांड जोन देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बस ये जो इंडिकेटर है मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, या आप इंडिकेटर को दोबारा ऐड कर दीजिए और इसका हायर टाइम फ्रेम जो है वो वीकली से चेंज करके मंथली कर दीजिए। तो इस तरह से मैं एक ही चार्ट पर डेली, वीकली एंड मंथली तीनों टाइम फ्रेम्स के डिमांड एंड सप्लाई जोन्स देख सकता हूं। और इस तरह से आपको ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी मल्टीपल विंडोज के, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के डिमांड सप्लाई जोन्स एनालाइज करने के लिए। चलिए ब्रिटानिया का एनालिसिस करते हैं। ब्रिटानिया अभी डेली, वीकली और मंथली डिमांड जोन्स के अंदर है। हायर टाइम फ्रेम जोन्स में कोई नियर बाय सप्लाई जोन नहीं है और ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिकेटर किस तरह से यूज करें और मार्केट को एनालिसिस किस तरह से करें। ओके, तो स्टॉप लॉस इसमें जो है डिमांड जोन के नीचे रखेंगे, लगभग अराउंड 4.5% के आसपास। और टारगेट जो है वो हम 90 से 20% का रखेंगे, क्योंकि नियर बाय कोई सप्लाई जोन नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम का जो नियर बाय सप्लाई जोन है हम उस तक रखेंगे। आप एक सप्लाई जोन देख रहे हैं बीच में, लेकिन वो टेस्टेड है। और अगर प्राइस वीकली एंड मंथली के डिमांड जोन से निकलेगी तो ये टेस्टेड डिमांड जोन टूट ही जाएगा। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो तकरीबन 1:4 या अराउंड 1:4.5 का होगा। आप पहले 1:2 टारगेट का भी एम कर सकते हैं और फिर बड़ा टारगेट लेने के लिए आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप इस पावरफुल इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं, डिमांड सप्लाई जोन प्रो इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं, तो विजिट करें marketupdate.com पर। सिर्फ 399 रुपए में मंथली प्लान है, तो देरी मत कीजिए, आज ही परचेस कीजिए। देखने के लिए आपका काफी शुक्रिया। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।